ओके तो ठीक है, पहले डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी किया है सबने? No, sir. नो सर, वाज इट नो सर और यस सर? Sir, for me it was no. अच्छा ओके, तो आपने वो हिमांशु पांडे किया है? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट लेवल विल डिस्कस हिमांशु पांडे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? Sir, 5. क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रॉन्ग है, आप लोग को पता चला क्या? क्वेश्चन नंबर 3 द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, बुक में जो आंसर दिया है दैट इज रॉन्ग। तो हेलो ओइशी, एवरीवन इज एबल टू हियर मी? Yes, sir. हाँ, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर रॉन्ग है। आप लोगों का क्या हुआ है, मतलब ये आंसर मैच किया कि नहीं किया? बोलो अल्को। रिया, हमेशा बताइए। Sir, is it option A? ऑप्शन ए is the answer that is given in the book, but that is wrong. Last class we discussed this thing, I think. 1-2 addition and 1-4 addition, you remember? Option C. C should be, B would be the correct answer. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कब 1-2 एडिशन होता है, कब 1-4 एडिशन होता है। वी डिस्कस दिस रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, so we discussed this reactivity selectivity principle that beggars are not choosers. So the things that are more reactive, that are going to be KCP, they are going to form kinetically controlled product. Okay, so Grignard reagent being highly reactive, that is going to favor 1-2 addition, although the product is not that stable, but the transition state is more stable because this RMGX is more reactive, so it wants the reaction to finish quickly. So here 1-2 addition will take place. Okay, you remember this last class में we discuss all these things? ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो in this question also you see this nucleophile has an option. ठीक है, question number 3 and 4, both of them are interrelated. This is actually Grignard reagent, RMGX. ठीक है, so this is highly reactive. It is going to undergo 1-2 addition or 1-4 addition. बताइए ओइशी। 1-2 addition। ठीक है, तो R minus is going to attack as a nucleophile, इसका ऐसे खुलेगा, and the product that you are going to get shall be OH R this thing. So this is your option B. ठीक है, but I think in the book it is mentioned on option A, right? So this option is wrong, so just make the correction in your books or assignments, whatever. Okay, then similarly in question number 4, now you think now you see in this organometallic compound, here it is attached with a copper. Okay, so this is less reactive, so this is going to show 1-4 addition. Okay, 1-4 addition. What is the meaning of 1-4 addition? That if you make a resonance hybrid of this compound, okay, let us say you make a resonance hybrid of this, cut. So you'll get O minus double bond and here plus. Okay, so in this case the nucleophile, that is CH3 minus, that is going to attack on 4th position. This is 4. See, this is 1, 2, 3, 4. Okay, that is why it is called as 1-4 addition. Hydrogen is getting added at 1 position and CH3 is going to add it at 4 position. So if you add CH3 minus to the 4th position, it will become like O minus double bond CH3.
Second step, H plus. So H plus is going to be protonated here. Okay, this oxygen is going to get protonated, and the product that you are going to get is OH CS3. Okay, so this is the 1,4 addition product. Everyone is able to understand? Yes, sir. And now if you tautomerize this, sorry, this is not a resonating structure, so we cannot use the arrow like this. Oh. So this arrow is wrong because this is not a resonating structure. Okay? So we are going to show this arrow. Here tautomerization will take place. Okay? And this enol form is going to get converted to its keto form. That shall be double bond O CH2. Is it clear? So the answer will be C. Is it clear to everyone? Hello? This both of these questions are clear? Sir. Okay. Then question number 5. Who was asking question number 5? Sir, Amisha. Amisha. Question number 5. So first step will be formation of Grignard reagent, that is RMGX. Okay. So rest of the compound you just keep it as it is, CH2, and here you can add MgBr. Okay. Now okay. So here intramolecular attack of nucleophile is going to take place. Okay. So in this case, the anion that is there is this thing. Everyone is able to understand? This is the anion and MgBr is the positive part. Okay. So in the last class we had seen about the okay, what happened to that? In the last class we had seen about attack of Grignard reagent on an epoxide. You remember? Is what it was, SN1 or SN2? रिया आप बताइए. SN1. No, it was SN2. ठीक है, SN2 होता है ना, लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होता है, राइट? Yes, sir. ठीक है. So somehow something similar is going to happen. So this minus has a chance to attack on this carbon or this carbon, and because the reaction will be SN2, it will attack on this carbon because it is primary, and this bond is going to get broken like this. Okay. So what is the compound that you are going to get? This thing along with O minus. Is it clear how this compound is getting formed? थोड़ा सा ट्रिकी है, इमेजिन करना है ये O माइनस पीछे से आके इस पे अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड खुल जा रहा है. ठीक है, एवरीवन इज एबल टू विजुअलाइज? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ओके. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. Just like in this case, R minus is going to let us say attack here. अरे ये क्या हो रहा है? Let us say R minus is going to attack here, and this band is going to get broken, and eventually you will get R cut O minus. This is clear? Yes. So similarly, you imagine this is the negative charge, and this can attack here or here, and because the reaction is SN2, it will attack here. This point is clear to everyone? Yes, sir. So this R minus is going to react with this delta plus, इसके बीच bond बन जाएगा, and this O minus is going to get broken. तो ये O minus जो खुला है वो इधर आ गया, and ये वो वाला कार्बन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज था, जिसने इस कार्बन पे बॉन्ड बनाया. समझ में आ रहा है? Now is it clear? Yes, sir. So and then you are adding H3O plus also. So now it will, O minus will get protonated. Eventually you will get this compound. Okay. Now next step is little tricky.
HBr in presence of Hmu. So there are few exceptions. हम लोगों ने actually this is topic of your hydrocarbons, ठीक है? So in hydrocarbons, I don't know if it was taught to you or not in your class 11. तो जो 3-membered और 4-membered rings होते हैं, ठीक है? They can undergo addition reactions. ठीक है? उसमें addition reactions हो सकते हैं, मतलब वो ring खुल सकता है. For example, let us say you react it with HBr, ठीक है? तो these two compounds behave just like double bond, ठीक है? Behave just like alkenes, ठीक है? तो जिस तरह अल्कीन में क्या होता है, let us say this is the alkene. If you add HBr in presence of Hmu, so eventually you are going to get product like this. Everyone remembers this? Hello? Okay, so similarly in this case also, if a 3-membered ring is made to react with HBr, they can also show addition reaction similarly, okay? So you will get HBr something like this. 4-membered ring will show 1 2 3 Br, okay? 1 2 3 4 carbons and then Br. Is it clear to everyone? Hello? Hello, is it clear, this addition reaction? This is something that is taught in class 11 with hydrocarbons, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपने क्या किया, HBr ऐड किया. तो अगेन जस्ट नाउ आई टोल्ड कि इस तरह से, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड कि इस रिएक्शन में क्या होता है, रिंग खुल जाता है हमारा. तो अगेन Br खुल जाएगा एंड देन यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक OH एंड Br. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आंसर विल बी A. दिख रहा है सबको? हेलो, is it clear or should I explain it again? बोलो आप लोग yes or no. Sir, Can you explain which part? the last. Last part, addition of HBr. Yes, sir. Okay. What So, that OH is attached to the triangle. हाँ, Sir, last part से पहले वाला. लास्ट पार्ट के पहले वाला. अच्छा, ये R माइनस का जो अटैक हुआ, that thing. Yes, sir. Okay. Okay, I'll show in a separate sheet. Okay. Okay. So this is your compound O, and you are having MgBr here. Okay. So basically, this compound is O minus, okay, and MgBr plus. Is it clear now? Yes, sir. हाँ. तो इस पे क्या हो रहा है, these two carbons, because oxygen is attached here, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ठीक है, and here is a negative charge, and because this reaction is SN2, ठीक है, R minus का जो अटैक होगा that will be on this carbon, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा. तो what you are going to get, ये वाला कार्बन है उसको हमने लेटेस्ट से स्टार मार्क कर दिया. तो जो स्टार मार्क वाला कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ये बॉन्ड इधर खुल चुका है O माइनस. नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. हाँ. फिर अगले स्टेप में इस पे H लगा तो हमारा कंपाउंड ये हो गया OH, ठीक है. फिर इस पे आपने HBr का एडिशन कर दिया तो 3-membered रिंग एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, अल्कीन की तरह बिहेव करते हैं. तो OH इसमें पहले से है और 1 2 3 कार्बन, इसमें आपने Br ऐड कर दिया, ठीक है. आगे बढ़े. Yes, sir. This was question number 5, level 2 HP, ठीक है. ओके, चलो फिर इस पे वापस आते हैं.
क्वेश्चन नंबर 6 to 8, एनी डाउट? नहीं है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो अगर आपने वो शीट किया हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला डीपीपी, आपने किया है जो हमने होमवर्क दिया था? Yes. हाँ, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो CS3 MGBR की CS3 MGBR हमारा यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से किस कार्बन पे अटैक करेगा? जिस पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो, ठीक है। द वन दैट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, sorry, better electrophile, that position will get attacked by this CS3 minus, ठीक है। तो if you look closely, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है, that is in conjugation with this carbon. तो यहाँ पे जो डेल्टा प्लस होगा इस कार्बन पे, this delta plus will be less in comparison to this carbon. यहाँ पे कुछ resonance stabilize नहीं है, तो यहाँ पे जो delta plus है that will be high. So ketone will be more reactive towards substitution than ester. Is it clear to everyone? हाँ, फिर से बताएं। देखो, हमने क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे ज्यादा होगा? जिस पे कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिले उतना अच्छा रिएक्शन होगा। एंड बिकॉज इन द केस ऑफ ईस्टर, ये आपका जो ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दिस कार्बन इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है दैट इज गेटिंग कॉम्पेंसेटेड बाय दिस ऑक्सीजन, so that delta plus is not as strong as in this case, in the case of ketone, okay. So that is why ketone is more reactive than ester in case of reactivity. So फिर आप reaction करा दो CS3 minus का ketone पे reaction करा दो, and the product that you are going to get will be A, ठीक है। Okay, one second, कुछ और होगा क्या? नहीं, कुछ और नहीं, ठीक है। कुछ और होगा, एक मिनट। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, यहाँ पे H3O प्लस भी हम लोग डाल रहे हैं, तो ईस्टर का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आप लोगों ने सुना होगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ईस्टर है दैट इज आल्सो गोइंग टू गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। सो ये तो इधर का आपका रिएक्शन हो चुका है, एंड दिस ईस्टर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये रिएक्शन पता है सबको, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और शुड आई एक्सप्लेन? आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए, एक मिनट रुको। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होगा, कोई ईस्टर ग्रुप है अगर आपके पास, वो आर, ठीक है, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में टूट जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो, ठीक है। और ये जो ये हमारा जो कंपाउंड था उस पे हम लोग वापस आते हैं। दिस वाज, एक मिनट मेरे को स्ट्रक्चर थोड़ा देखने दो। दिस कंपाउंड वाज डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो द कंपाउंड वाज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस पे आपने क्या किया, सबसे पहले CS3 माइनस का अटैक कराया, ठीक है। तो हमने बताया सबसे पहले कीटोन ग्रुप पे ये अटैक करेगा, बाद में इसकी क्या होगी, H3O प्लस से इसको हाइड्रोलिसिस कराया।
तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आपका ये चीज बन चुका है, ठीक है, एंड देन ये चीज आपका एसिड बन चुका है, प्लस ये वाला ग्रुप आपका ROH जो है वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये कंपाउंड में एक कहाँ से लेना है? ठीक है, इस कंपाउंड में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और एक क्या है, अल्कोहल है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, जहाँ पे ROH और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिला के ईस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो H2O निकलता है, ठीक है, यहाँ से आप OH निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, यहाँ से आप OH निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा यहाँ पे जिसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 1 2 3 4, नंबर 1 पे 2 मिथाइल निकले हैं, नंबर 1 पे 2 मिथाइल निकाल दो, ठीक है, और दैट्स इट, दिस इज गोइंग टू बी योर, अच्छा नहीं, डबल बॉन्ड 4 पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, 4 पे डबल बॉन्ड, so this is going to be your final product. Is it clear कैसे हो रहा है ये रिएक्शन? बोलिए। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? हेलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स थे। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो डीपी में जो क्वेश्चन है उसको करने से वो सब क्लियर हो जाएगा रेट का, ठीक है। तो हमारा कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे कीटोन पे अटैक हो रहा है, कीटोन पे अटैक हुआ, ये अल्कोहल बन गया, और फिर जो ईस्टर है उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ने मिला के फिर स्टेरिफिकेशन किया, तो उससे हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट बन रहा है। इज इट क्लियर? या आपका आवाज नहीं आ रहा है किसी का? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Clear. It is clear. Then question number 8, 9, 10. Any doubt? 6. Question number 6. Sixth किन को डाउट है? Ramisha. मीशा, ओके। 6 में क्या डाउट हो गया? 6 तो इजी क्वेश्चन है। CH3 minus is going to act as a nucleophile, ठीक है, और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, खुल जाएगा ये, और ये एक्सेस में है तो इस कार्बन पे भी अटैक करेगा, ये भी खुल जाएगा। तो CH3 लगा दो दोनों से, दिस इज CH3, इस कार्बन से भी CH3 H, ऊपर जो O माइनस खुला है दैट विल react with H3O plus OHOH. Okay. B will be the answer. Is it clear? Yes, sir. फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, any doubt? नहीं है, आगे बढ़े। Okay. Then question number 10, 11, 12, any doubt? 10. किनका डाउट है 10 नंबर? Riya. ओके। CH3 माइनस, तो CH3 माइनस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे या फिर लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे, बताइए रिया। So left. लेफ्ट वाले पे क्यों? बोलिए बोलिए। तो वो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव। ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्यों?
हमने अभी तक तीसरे बार बता दिया कि इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इपोक्साइड पे, दैट इज SN2। ठीक है, शीट में भी इतने सारे क्वेश्चंस थे। SN2 अटैक होता है तो इस वाले पे होगा, क्योंकि ये कार्बन हमारा लेस हिंडर्ड है। यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो इसको इधर से खोल दो, फिर ये क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा, एंड दिस विल बी CH3। तो आंसर आपका ये हो जाएगा C। ठीक है, हेलो। देन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, एनी डाउट? 11 11 किसका डाउट है ये? हमेशा। हमेशा। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमेशा, आप बताओ। SOCl2 pyridine क्या करेगा इस कंपाउंड पे? बोलो बोलो। फिर SN2 होगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे अटैक होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? OH हटा के यहाँ पे Cl लगा दो। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा ओके सर। ठीक है, SOCl2 यही करता है ना, OH को हटा के Cl लगा देता है। अगर pyridine के साथ नहीं लगाया तो सेम साइड लगाता है, अगर pyridine के साथ लगाया तो उसके ऑपोजिट कन्फिगरेशन में लगाता है। ठीक है, ओके सर। okay, then if you react this compound with Mg, what is going to happen, बताओ हमेशा। सर MgCl निकल जाएगा वहां से। ठीक है, MgCl हो जाएगा ये। तो ये आपका कंपाउंड है, कट कट, दिस बिकम्स MgCl नाउ। ठीक है, ओके। अब इस कंपाउंड का इस पे क्या रिएक्शन होगा, बताओ, सोचो। सर ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे। ऑक्सीजन के लोन लेफ्ट पे? साइडेड। कौन से ऑक्सीजन के लोन पे है? इस ऑक्सीजन के? सर हाँ किस पे अटैक करेंगे? सर, लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है उसमें। इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? सर लेफ्ट लेफ्ट, साइड वाला। ये वाले पे? नहीं, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्यों अटैक कर रहे हैं ये बताओ, ऐसा रिएक्शन आपने कहीं देखा है? हाँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर थोड़ी अटैक करते हैं। ये कंपाउंड क्या है? दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड पे कैसे अटैक करता है? सर R- अटैक करेगा ना। तो R- इसमें कौन सा चीज है? ये पूरा चीज आपका R है, समझ में आ रहा है? MgCl के अलावा। हाँ हाँ, तो दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस लेफ्ट साइड। बात समझ में आई? यस सर। तो ये पूरा निकाल के आप इस पे अटैक करा दो और ये बॉन्ड इधर से खुल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट? सॉरी, ओ, ये तो पहले ऐसे बना दो, देन दिस इज R, दिस हैज अटैक्ड ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन पे अटैक किया इसने और ये बॉन्ड आपका इधर खुल गया, O-। इज इट क्लियर? यस सर। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? एक मिनट, OH हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा एक मिनट, इस ऑक्सीजन, ये ग्रुप हमारा थोड़ा सा गड़बड़ रहा हुआ है। दिस इज योर दिस थिंग, जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल में ऑक्सीजन है, दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी D। ठीक है, यस दिख सर। रहा है? दिख रहा हाँ है? हाँ सर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 किसी को डाउट है? क्वेश्चन 12 किसको? ओइशी, आपको डाउट है? ओके, CH3 MgBr क्या करेगा यहाँ पे?
बताओ आयुषी। Sir, it will act like a Grignard reagent. It will act like a, no, it will not act like a Grignard reagent. It is a Grignard reagent. हाँ, R minus क्या करेगा बताओ? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये कंपाउंड क्या है? Is this a ketone or is this a ester? हाँ ओइशी, Easter. दिस इज ए ईस्टर, ठीक है। ईस्टर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Sir, addition. एडिशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ईस्टर पे पहले अटैक करता है, फिर पाई बॉन्ड वापस आता है, वो माइनस निकलता है, राइट? Yes. हाँ, तो वही होगा यहाँ पे। CH3 माइनस का आप किसी भी एक कार्बन पे अटैक करा दो, ये पाई बॉन्ड खुलेगा, फिर पाई बॉन्ड जब वापस आएगा तो इधर से O माइनस आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. यहाँ पे CH3 एंड दिस इज O माइनस, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? ओके, नाउ योर इट इज बीइंग अटैक्ड बाय PHMGBr। तो PHMGBr किधर अटैक करेगा? आप वैसे आप बताइए, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, लेफ्ट और राइट? Yeah, हम्म, right. राइट, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे डेल्टा प्लस कम करेगा, तो कीटोन ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर, सॉरी, O माइनस कट, दिस इज पीएच इस पे जुड़ चुका है, CH3 इस पे ऑलरेडी था, एंड दिस इज O माइनस, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप, H प्लस इज गोइंग टू अटैक हियर, so this is OH, double bond O, OH, CH3, PH. So what is this? This is a, let us say this is alpha, alpha hydroxy carboxylic acid, ठीक है। तो B will be the answer. Is it clear? Yes, sir. Okay. Then question number 13 to 13, 14, 15. Any doubt? 13 में कुछ डाउट नहीं है? Okay. And 14, 15 any doubt? हाँ बोलिए। Sir, 13. 13 में डाउट है, किसको डाउट है? Wish. ओइशी, ओके। सो पीएच माइनस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफाइल हियर, ठीक है। कहाँ पे अटैक करेगा बताओ ओइशी? हेलो ओइशी, बोलिए, पीएच माइनस वेयर इट इज गोइंग टू अटैक? क्या हुआ? हेलो ओइशी, कैन यू हियर Sir. मी? हाँ, Yes, sir. पीएचएम, हाँ, पीएचएमजीबीआर, हाउ इज इट इज गोइंग टू अटैक दिस? सबसे पहले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, राइट? O माइनस खुल जाएगा, ठीक है। So what is the product that you are going to get? This product A. This product A is nothing but this double bond, uh, O minus. This is pH and pH. Is it clear? Okay. Then HClO4. What HClO4 is going to do? So HClO4 is an acid. Okay. H plus basically ये देगा, and it is going to protonate. अच्छा, पहले ही H plus आ चुका है, ठीक है। So the product A is this thing, ठीक है। Next thing again H plus is it is giving, so again H plus will protonate this oxygen's lone pair, water निकल जाएगा यहाँ से, and you are going to get this aromatic compound.
Is it clear, Oishi? Yes, sir. So answer will be A. Okay. और बताइए 14 15 any doubt? नहीं है? Okay. Then 16 17 नहीं है? Okay. 16 अच्छा ये 15 हो गया सबसे. हेलो 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 ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ सबसे. I'm asking. हेलो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ सबसे. से यस और नो. हेलो अमीशा रिया ओइशी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 हुआ आपसे. नहीं सर. तो उतने देर से बोला क्यों नहीं? आई वाज वेटिंग आप लोगों से. ओइशी एंड रिया. हेलो हेलो ओइशी could you do this question number 15? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है देखो CS3MGBR क्या करेगा. हेलो अमीशा कैन यू हियर मी? यस सर. व्हाट द CS3MGBR इज गोइंग टू डू ऑन दिस. क्या कर सकता है ये बोलो. सर CH3 CH2 दिस इज CS3 CS2 माइनस राइट. यस सर. हाँ तो ये क्या करेगा किस पे अटैक करेगा. तो C पे अटैक करेगा. कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है. हाँ. एंड दिस बॉन्ड विल गेट ओपनड अप. उसके बाद क्या होगा. ठीक है. तो ये P जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी. अच्छा इसको हम PH से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. PHNC sorry NC and this will be OH and this will be this thing. Is it clear Amisha? यहाँ तक clear है. यस सर. Okay. Then again if you see if you look closely this will show tautomerism. Sir, हाँ बोलो. sir, sir, this carbon oxygen pi bond, you had said that it's very strong. हाँ So you break करेगा? क्या. Sir, will it break then in the first step? हाँ in the first step it will break ना.
otherwise how is this CH3 2 minus is going to attack here? ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, नाइट्रोजन पे अटैक कराने का? हाँ ठीक है, okay. So again if you look closely, so this is keto enol tautomerism. It's not keto enol actually. What is it exactly? Enamine hydroxyenamine amide, ठीक है. So this is, ठीक है, this is the keto form of this enol, ठीक है. It is not exactly keto because this is amide group, ठीक है, but it is something like that. Double bond से OH जुड़ा हुआ है, so it is like an enol, and C double bond O, it is like keto. This is clear? This tautomer is clear to everyone? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद फिर इस स्टेप में आपने क्या किया, CH3O, this is a base, ठीक है. So it is going to extract a H plus. कहाँ से H plus extract करेगा? नाइट्रोजन से करेगा, ठीक है. So इसने नाइट्रोजन से H plus extract कर लिया, then the compound becomes PHN minus C double bond O, this thing. अब ये माइनस है, इस पे आपने किसका रिएक्शन कराया, CH3I का, so इस पे ऑलरेडी डेल्टा प्लस है, so this minus is going to attack here and this I minus is going to come out. The product will be PHN CH3 C double bond O C2H5. Is it clear to everyone? Any doubt in this one? See, I'm again and again repeating this. If you have any doubt, don't just let it go. ठीक है, आपको क्लास में अगर 10 के 10 क्वेश्चन में डाउट होता है, you ask each and every question. What I don't like is हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर आप लोग बोलते हैं कि सर ये डाउट था, और I have to ask it, I have to put in so much endeavor. So that is not the point of this learning. यहाँ पे आपको डाउट पूछना है, you have to be prompt in this. Is it clear to everyone? Yes, sir. Is it clear to you, Amisha, this question? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 17 डाउट है? Sir, 16. 16 किसको डाउट है? अमीशा आपको? Yes, sir. ओके, तो CH3 माइनस, ठीक है, तो अगेन CH3 minus can attack here, it can attack here, and the product you are going to get will be COH CH3 COH CH3. Is it clear? Yes, sir. So it has two chiral carbons, so the configuration can be first carbon R, second S, first carbon S, second R, or it can be both R or it can be both S. Is it clear? Okay, sir. Okay. But if you see, if you look closely, these two are identical. Okay? Yes, sir. Because it contains a plane of symmetry. It is a meso compound. So this is 1, this is 2, this is 3. The number of products will be 3. Okay? So answer will be either this or this. And how many fractions? So enantiomers have same boiling point. Okay? So RR and SS are enantiomers. So they will come out in the same fraction, and the boiling point of both 2 and 3 will be same. Okay? So that is why you are going to get this fraction, and this is going to be fraction A, this is going to be fraction B. So answer will be C. Is it clear? सर यहाँ Okay, पर sir. Yes, sir. CH3 MCBR एक्सेस में नहीं दिया तो हम दोनों जगह रिएक्ट करवा सकते हैं. हाँ, वो थोड़ा क्वेश्चन के लैंग्वेज से देखना है. प्रोडक्ट्स अगर पूछ रहे हैं इस टाइप का तो ऐसे समझना है. ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों जगह आपने रिएक्शन नहीं कराया, एक ही जगह कराया, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट? दिस थिंग CH3, और ये पूरा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O PH. ठीक है, अगेन दिस कार्बन इज कायरल, तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे. ठीक है, R और S, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल होगा तो एक ही फ्रैक्शन मिलेगा.
So the answer will be 2,1, which is none of the options. ठीक है? ओके सर. Sir, हाँ बोलिए. sir, can you show question 14? Question 14. में डाउट है आपको? Yes, sir. Okay. What is the structure of A? तो इसको आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ABCD करके बहुत लंबा चेन चल रहा है. और इन अदर वर्ड्स, चलो इससे हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो ओजोनोलिसिस के बाद आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है? तो इसके पहले वाला कंपाउंड हमारा क्या होगा? कंपाउंड E विल बी दिस थिंग. इज इट क्लियर? इसको ओजोनोलिसिस हम करेंगे तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है? तो दिस इज योर कंपाउंड E. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बाद आपको ये मिला है, मतलब कंपाउंड D will be something like this, OH like this, ठीक है? तो OH प्रोटोनेट होगा H plus and then we are going to get this. Is it clear? और इसको मतलब कंपाउंड C आपका क्या है? इफ यू लुक क्लोजली, C कुछ ऐसा होगा, कैसे होगा? C will be a nucleophile, ठीक है? क्योंकि MgBr आप पहले ऐड कर रहे हैं, तो C must be a R minus. और वो कौन सा R minus है जिसको इस पे अटैक करने के बाद ये कंपाउंड बनता है, ठीक है? सो इससे आप R minus का स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं. हाँ, R minus will be ठीक है? तभी यहाँ पे माइनस चार्ज होगा और ये माइनस चार्ज इस पे अटैक करेगा और फिर ये कंपाउंड बन जाएगा. इज इट क्लियर? हेलो? हाँ, फिर इस कंपाउंड से आप B का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. B का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, इस पे Mg डालेंगे तो MgB ऐसा बन जाएगा. और फिर B का स्ट्रक्चर मिल गया तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके ब्रोमिनेशन से ये बनेगा? तो अच्छा, Br2Hmu है, तो अल्केन का ऐसे होता है, ठीक है? आंसर आपका C हो जाएगा. अगर यहाँ पे HBr रहता है इसकी जगह, ठीक है, तो आपका आंसर ये A हो जाता है. इज इट क्लियर ओशी? Sir, yes, sir. हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट? Sir, how did that structure D come to your development? स्ट्रक्चर D कैसे आया? D क्योंकि आपको E पता है ना, E में डबल बॉन्ड आपका इधर है, ठीक है? इसको अगर आप डीप्रोटोनेट करो, H प्लस डालो इस पे, तो ऐसे हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर एलिमिनेशन हो Okay, जाएगा, sir. ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 till 20. Any doubt? बोलो. सर 18. 18. Plus X. Yes. किसका स्ट्रक्चर बताना है? X का बताना है इसमें. ओके, देख लो इसमें कितने कार्बन है आपके? 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन है, ठीक है? मतलब X में कितने? 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है? ये आपका क्या है? 1 2 3 कार्बन है, ये आपका 1 2 3 कार्बन है, ये भी आपका 1 2 3 कार्बन है. बहुत सही. तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये N है, ठीक है? तो इसको स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? दिस इज द कंपाउंड. और ऐसा कंपाउंड कैसे मिलेगा अपने को?
इस कंपाउंड पे रिएक्शन से मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर R माइनस, R माइनस का इस पे अटैक होगा, एक मिनट, R माइनस नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, R माइनस का इस पे अटैक होगा तो H प्लस निकल जाएगा, O माइनस आ जाएगा एंड दिस O माइनस इज गोइंग टू अटैक इंटरनली, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। देन R माइनस का अगर इस पे आप अटैक कराते हो, अगेन दिस कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, इस पे भी नहीं कर सकता रे, इस पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पे भी नहीं कर सकता, हाँ इस पे कर सकता है। सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो सर। देखो यहाँ पे हमने कल रिएक्शन में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब भी कहीं एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट एज अ बेस, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो R माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ अगर A के साथ हमारा R माइनस रिएक्ट करे, ठीक है, सो क्या बना लेगा, ये RH बना लेगा प्लस दिस Cl और ये O माइनस, ये दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ B आल्सो देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा, RH बना लेगा प्लस दिस विल बी H2O प्लस O माइनस, ठीक है। तो वो भी नहीं चाहिए अपने को, ये प्रोडक्ट चाहिए। इसमें भी वही होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये भी नहीं हो सकता, बचा ये C। अब C पे आप रिएक्शन करा लो, R माइनस अटैक करेगा, किसी एक तरफ से करा लो, ये खुल जाएगा एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज R CH2 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 OH, ठीक है, विच इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। दिखा? यस सर। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। थ्योरी सारा पढ़ाया जा चुका है क्लास में, जस्ट हैव टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस टू सॉल्व दिस, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19 20, एनी डाउट? बोलिए। नहीं है, देन 21 22 23। सर 20। 20, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ओके, तो आपके पास बेसिकली R माइनस क्या है, R इज योर दिस थिंग, ठीक है, CH3 CH2 माइनस, इज इट क्लियर? हेलो, सर स्क्रीन में 21 आ रहा है। स्क्रीन में 20 नहीं आ रहा No, sir. नो सर। अभी? यस सर अब आया। हाँ हाँ सर आया। दिस इज CH3 CH2 माइनस, ठीक है। तो इसको किस कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे कि आपको ये मिले, सो बेसिकली दिस इज योर CH3 CH2 माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या एक Br होना चाहिए, तो B आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप CH3 CH2 माइनस का अटैक कराओगे, इधर से Br माइनस निकलेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो, दिस इज द कंपाउंड, इस पे आपने रिएक्शन कराया किसका, CH3 CH2 माइनस का अटैक हुआ, Br माइनस निकला, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि आपके आंसर में है। समझ आया? यस सर। और बताओ क्वेश्चन नंबर 21 22 23। सर 21 में in place of Br ether will join. ईथर विल नॉट ज्वाइन, Mg विल ज्वाइन। ईथर तो मीडियम होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, वो रिएक्ट थोड़ी करेगा, दिस इज जस्ट अ सॉल्वेंट, हाँ हाँ। ठीक है। इन प्लेस ऑफ Br
Mg will join, ठीक है, MgBr हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। Okay, then question number 22, 23, any doubt? 22. 22. Question number 22. अरे ये तो बहुत सिंपल है, CH3 माइनस अटैक करा दो, इसे खोल दो, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, दिस विल बी OH, ये CH2, CH2 से ये CH और ये कट कट सर हो गया आपका ये D, ठीक है। ओके 23 में डाउट है? मैग्नीशियम ईथर क्या करेगा, तो मैग्नीशियम ईथर क्या करेगा, आर आई की जगह यहाँ पे आयन बना देगा, ठीक है, गेट एन आयन लाइक दिस, फ्लोरीन कट कट माइनस, ठीक है, MgI, बाकी सब पूरा वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, फ्लोरीन का फ्लोरीन, अगेन यहाँ पे क्या होगा, R माइनस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएगा, ठीक है, SNAE, एडिशन फॉलो सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो ये बॉन्ड इधर खुला, वापस आया, Cl माइनस निकला, दिख रहा है सबको? ओके, तो क्या बन जाएगा, दिस इज CH2, दिस इज CO, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फ्लोरीन का फ्लोरीन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी B, ठीक है, क्लियर है सबको, दिख रहा है? Yes, sir. ओके देन देख लो इसको, अच्छा फ्लोरीन पे क्यों नहीं रिएक्ट किया MgBr, Mg could have attacked fluorine also, क्या पुअर लिविंग ग्रुप, F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, नहीं यहाँ पे लिविंग ग्रुप से इसका कुछ लेना देना नहीं है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी टूटता नहीं है, इज इट क्लियर, ठीक है, लिविंग ग्रुप नहीं है सर, ठीक है, ओके देन क्वेश्चन नंबर 24, 25, any doubt? 26, 27, 28, 29, बोलिए 20, 28, 28 के पहले कुछ डाउट किसी को? Sir, I'm asking हाँ, PHF is there. which question? How is she? Which question? Sir, question number 25. 25. हाँ बोलिए, Sir, PHF is there. PH, THF. THF, where is THF in 35, 25? Sir, THF, along with okay, हाँ THF, okay, THF is tetrahydrofuran, ठीक है, Sir, what is its function? this is a medium, ठीक है, tetrahydrofuran means, see this is furan, फ्यूरान में अपने 4 हाइड्रोजन है, दिस इज फ्यूरान एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, दिस इज योर THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सो दिस इज अ ईथर, दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट, ठीक है, Okay, sir. ओके देन क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 28 के पहले और कुछ डाउट? नहीं है, ठीक है, 28 देखते हैं, 28, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट CH3 माइनस, ठीक है, तो CH3 माइनस आई हैड टोल्ड कि ये एज एसिड एक्ट कर सकता है और इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है,
तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, तो 2 मोल तो आपके एसिड में चला गया, ठीक है। एंड अगेन CH3 माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो, कट करके Cl माइनस निकल जाएगा, you'll get a ketone. Again ketone can also be attacked by CH3 minus, again कट करके finally you are going to get this thing. तो 2 इधर कंज्यूम हो गए, 2 नीचे कंज्यूम हो गए, 2 एज बेस कंज्यूम हो जाएंगे, आंसर 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29 30। 29 में डाउट है या फिर आगे बढ़े? Yes, sir. है हाँ सर, डाउट है डाउट है, किसको डाउट है? सर। अमीशा। ओके अमीशा। तो पीएच माइनस है, इसके पास ऑप्शन है आपके पास इस कार्बन पे अटैक करने का या फिर इस कार्बन पे अटैक करने का। किस पे अटैक करेगा बताओ, ऊपर या नीचे? आप बताओ वंशी, किस पे अटैक करेगा, ऊपर या नीचे? हेलो वंशी, आपने किया ये क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो देख लो पीएच हमारा क्या नीचे अटैक करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस कार्बन इज लेस हिंडर्ड। यहाँ पे बगल पे टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो दिस इज वेरी बल्की, तो इस पे अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे अटैक रिलेटिवली आसान है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस कार्बन विल बी अटैक, पीएच माइनस इधर कर दो, खोल दो इसको, प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट विल बी बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर 30। हाँ बोलो। 28th question. 28th क्वेश्चन में क्या? Sir, 4 moles are getting consumed for those. Acyl chlorides. Yes, yes. And where are the other 2 attacking? These here these 2 hydrogens are acidic now, so here 2 moles will get consumed, and because in the next step you are again adding H plus, so they will get protonated again. Okay, sir. Then question number 30 31 32, any doubt? नहीं है? Okay, question number 32 33 34, any doubt? हाँ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। Okay, question number 35 36 37, any doubt? नहीं है। Okay, question number 38 39 40, any doubt? 38. 38. One second. MgBr, Mg ether. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप एक्स में आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड पीएच MgBr, ठीक है। देन then in the next step this anion is going to attack this CH2, C double bond H माइनस इधर आया है, ये किधर खुला, get
PH C O minus H H. So A will be the answer. Is it clear? Yes. और बोलिए 3940 any doubt? Sir, बोलिए. 38, the answer is C. Answer is given C. C. Okay. Okay, that is also one possibility. लेकिन exactly कैसे हो रहा है मेरे को clear नहीं. ठीक है. I'm just trying. ये जो नेगेटिव चार्ज बना है यहाँ पे, ठीक है, this pH and this minus, ठीक है. So this bond can break like this. ये bond अगर पीछे चला जाए, so इस कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, that will form a bond with this. तो minus triple bond pH and this minus can attack this COHH, ठीक है. तो उससे आपका फिर C बन जाएगा. बट वाई दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ये मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है. वन थिंग वी कैन से कि एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है. 3 मेंबर्ड रिंग, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 120 डिग्री के हिसाब से बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है. तो दैट कैन बी अ ड्राइविंग फोर्स व्हाई दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग लाइक दिस. ठीक है. बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. अगर आंसर पता हो तो यू कैन प्रपोज द मैकेनिज्म, बट उसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है. ठीक है. This is not something standard reaction. Is it clear, Oishi? Yes, sir. Okay. Then 3940, any doubt? Sir, 39. 39. 39 हमने बताया क्लास में. रिएक्शन विद साइनाइड, ये ऐसे खुलेगा, वो माइनस जाएगा, फिर उसके हाइड्रोलिसिस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है. ओके, चलो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीपीपीस. डीपीपी किया है सबने? सर कंप्लीट नहीं हुआ. कंप्लीट नहीं हुआ. किसका कंप्लीट नहीं हुआ? रिया रेज्ड हैंड. एंड अमीशा, आपका हो गया? नो सर. ओके, ओइशी आपका? Yes, sir. ओके. सो डीपीपी आप लोग कंप्लीट कर लो. ठीक है. डीपीपी 14 एंड डीपीपी 30, 12, 13, 14. ठीक है. 3 डीपीपीज आर पेंडिंग. आई थिंक 12, 13 का हुआ था डिस्कशन. ठीक है. तो 12, 13, 14 डीपीपी कर लो. एंड दिस हिमांशु पांडे टिल क्वेश्चन नंबर 100 वी हैव डन. तो 101 to 160, that 60 questions we finished. ठीक है. So again we'll meet on Tuesday. Okay. Anyone has any doubt in what we discussed today? Okay.